Hi everyone, it's me, your Manu Ishu. Welcome to my YouTube channel, Manu Ishu ACCA classes. So in today's video, we are going to deal with section B question from Kaplan kit of F9. So name of the question is sensitivity analysis. So if you are watching my video for the first time, please like and subscribe to my channel and share it among your friends. And one more thing, just don't forget to hit the bell icon so for more updates. Okay, so before reading the question, let's first read out the requirement of question number 136. What is the sensitivity of the project to change in the sales volume to one decimal place? Okay. So how do we calculate the sensitivity? We just took the NPV of the project and divide it by the present value under consideration. In our question, the sales volume is, and so we will calculate first PV of sales volume. Sales volume means contribution. So year 0, 1, 2, okay. Sales in let's read out the question. The company is considering a project with the following cash flow: year 1 to given, initial investment given, variable cost of particular year, cash inflow, net cash flow given. Cash flow arise from selling 1,30,000 unit at a 10 per unit. The company has a net cost of capital of 9% and NPV of the project is 1490. So NPV of the project is already given. We don't need to calculate. So let's find out first sales income. For year 1, sales income will be 1030 into 10, as 10 per unit is our selling price, and for 2 year it will be same. So we will deduct variable cost. Variable cost given is 3200 for year 1 and 3200 for year 2 as well. So contribution is simply 7100. Okay, so now we need to find out the present value. So NPV equal to NPV divide, I am using the formula of Excel. I must suggest you guys also to use this formula. So our cost of capital as per the question is 9% and comma, and we will use undiscounted cash flow, which in our case is 7100. So NPV we got the, simply we will write PV of sales volume to make you clear. Okay, so now sensitivity margin of whom NPV is given in the question. NPV is 1490, right? We simply divide NPV by present value of sales volume. So it is 0.2 percentage, 11.93. So option C. ठीक है, so basically formula था, nothing else. Quite easy था. Okay, so what is the discounted payback of the project? ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन एक तरह से हमारा नेट कैश फ्लो कह सकते हैं ना, है ना. सो नेट कैश फ्लो ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, हाँ इसमें वो ऐड कर देती हूँ सो दैट डिस्काउंट तो करना पड़ेगा ना. ओके, सो अब हम लोग को डिस्काउंट फैक्टर चाहिए. डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 9%. आप चाहे टेबल भी यूज कर सकते हो और मैं जो फॉर्मूला लगा रही हूँ आप भी लगा के डायरेक्टली निकाल सकते हो. सिंपली टेक द इक्वल टू 1 प्लस 9% bracket close, then we will take a power minus, just move it to the year 0, it will be 1 and copy, shift. Okay, so this is the discount factor for 2 years. Okay, so now present value will be
Okay, one more thing I need to do is first we need to write out initial investment जो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है -11,000. ठीक है, सो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा हमारा दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, ये हमारा हो गया प्रेजेंट वैल्यू. मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसका भी काम नहीं है हमारे को. ओके, तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू. हम लोग को डिस्काउंटेड पे बैक फाइंड आउट करना है ना, तो इधर रखते हैं ईयर 0, 1, 2. ये बहुत सिंपल दिया हुआ है सच में. कैश फ्लो वी डू हैव ए फर्स्ट ईयर में है -11,000, सॉरी इनिशियल ईयर में, और फर्स्ट ईयर में 71 एंड सेम है आपका सेकेंड ईयर में. सो डिस्काउंट फैक्टर ये भी हम लोगों ने निकाल लिया ऊपर. अब हम लोग इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं. मैं बस अरेंज कर रही हूँ इसको इजी इजी वे में समझाने के लिए. आप आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हो. ठीक है, सो अब -11,000 में से वी रिसीव 6,514. तो इसको प्लस करने के बाद कितना बच गया 4486 और चाहिए, जो कि हमारा सेकेंड ईयर में रिसीव होता है. तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो ये 1 ईयर कंसिडर करेंगे, कुछ मंथ है तो वो मंथ में निकालने के लिए वी विल सिंपली टेक ये जो कितना बाकी था और सेकेंड ईयर में कितना रिसीव किया उसे डिवाइड करने के बाद ये हमारा 0.75 आ रहा है. तो मंथ में अगर आस्क करता है क्वेश्चन देन यू शुड मल्टीप्लाई दिस 0.75 बाय 12. ठीक है, अभी तो ईयर में पूछ रखा है तो 1.75. ठीक है, 1 तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है और ये 0.75 हमारा मंथ को इंडिकेट कर रहा है. तो ये हमारा डिस्काउंटेड पे बैक का ईयर हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको IRR पूछ रहा है कि निकालने को. इसके लिए भी मैं शॉर्टकट सजेस्ट करूंगी एक्सेल का फॉर्मूला. सिंपली आप IRR डालो, ब्रैकेट लगाओ और जितना भी अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो है अनडिस्काउंटेड, ठीक है, उसको आप कंसीडर करो. ठीक है, ऐसे IRR ब्रैकेट अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये हमारा 19%. अब इसको ये पॉइंट में है, पॉइंट में आंसर है तो 18.9 हो सकता है ना. ये क्वाइट सिंपल है ना, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ अब एक्सेल में प्रैक्टिस करो सो बेटर होगा. एक सेकेंड है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ IRR एंड NPV मेथड ऑफ अप्राइजल. ठीक है, अब फर्स्ट क्या कह रहा है, IRR इग्नोर्स द रिलेटिव साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट. ऑब्वियसली इग्नोर करता है, ये तो ट्रू है, वन वाला है ना. IRR is easy to use when there are non-conventional cash flow. और हार्ड हो जाता है उस टाइम, रॉन्ग डिसीजन लेने के भी चांसेस हाई होते हैं क्योंकि उस टाइम मल्टीपल IRR आता है इन केस ऑफ अनकन्वेंशनल कैश फ्लो. इसीलिए हम लोग एनपीवी को सुपीरियर कहते हैं ना, एनपीवी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं उस केस में जब IRR हम लोग को मल्टीपल आ रहा है ना. तो सेकेंड वन तो रॉन्ग है. एनपीवी इज वाइडली यूज्ड इन द प्रैक्टिस. NPV is widely used in the practice. हाँ, ऑब्वियसली आपका एनपीवी जैसे अब IR एंड आपका क्या बोलते हैं, और कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो, ठीक है,
तो एनपीवी इजी है ना, एब्सोल्यूट मेजर देता है, तो है ना, ये ज्यादा मतलब लाइक आईआरआर से आई थिंक ये सुपीरियर जो कहते हैं ना, ये उसीलिए आई थिंक ये सेंटेंस वो इंडिकेट करा हुआ आई थिंक। सो ये भी हमको करेक्ट लग रहा है, फिर भी हम लोग फोर्थ ऑप्शन पे जाते हैं। आईआरआर इज टेक्निकली सुपेरियर टू एनपीवी, नहीं, आईआरआर नहीं, एनपीवी सुपेरियर है आईआरआर से। तो ये फोर्थ वाला है वैसे ही रॉन्ग है, तो बच गया 1 और 3 जो हमारा आंसर होगा। 3 के लिए मुझे लगता है उस जैसे कि ये एब्सोल्यूट मेजर देता है, इजी है ना देखना फिगर कितना से हमारा शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है, इसीलिए शायद ये सेंटेंस उसी को इंडिकेट कर रहा होगा, इसीलिए आई विल गो फॉर 1 और 3। ठीक है। ओके सो ये क्वेश्चन भी इसी में करे क्या, कर ही लेते हैं। ओके, so Gilder company arrange the project in order to their preference to Gilder using the profitability index. Okay, तो profitability index कब यूज करते हैं हम लोग, in case of a divisible project. Gilder company is appraising 4 different projects but is experiencing capital rationing in the year 0. No capital rationing is expected in the future period, but none of the 4 projects that Gilder company is considering can be postponed. So decision must be made now. Gilder company cost of capital is 12%. तो हमारा फर्स्ट, एक मिनट, हाँ, कितना क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन तो है, ओके इसको कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट देखते हैं, पीआई कैसे कैलकुलेट होता है, एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो पहले प्रोजेक्ट, फिर आता है अमस्टर, फिर इलिंड, फिर इसके बाद ट्रेक, टीबोर्ड, जो भी है आप लोग समझ रहे होंगे, ये प्रोजेक्ट हो गया हमारा। देन वी विल टेक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्या है हमारा 100 1 2 3, 56 1 2 3, 60,000 1 2 3, 90,000, ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एनपीवी दिया हुआ है हम लोग को, एनपीवी क्या है फॉर द फर्स्ट प्रोजेक्ट 11,400, 6580, 8760, 12,400। अब हमारा पीआई निकालेंगे, पीआई क्या है, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब रैंक करेंगे, ठीक है, रैंक करने के लिए इसको थोड़ा राउंड अप कर देते हैं। सो अब ठीक है, सो रैंक, ओके सबसे हाईएस्ट किसका है 1, है ना, ये है, इसके बाद ये 2 3 4, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है और रैंक करने को, तो यही हमारा होगा रैंक ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, समझ में आया ना। बस हम लोग को जब प्रोजेक्ट डिविजिबल होता है ना, तो उस केस में हम लोग को पहले पीआई निकालना पड़ता है। पीआई निकालना कैसे निकालेंगे, एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट को रैंक करेंगे, जो हाईएस्ट होगा उसको पहले एंड जो लोएस्ट होगा लास्ट में। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिल्डर कंपनी डिसीजन टू यूज पीआई इज ट्रू। हम लोग पीआई क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पीआई हम लोग को, एनपीवी क्या है हमारा रिटर्न है ना, कितना हम लाइक इनिशियल इन्वेस्टमेंट के करने के उसको हटा के कितना हम लोग एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो पर यूनिट कितना अर्न करे वही तो दिखाता है ना पीआई। तो क्या बोलता है फर्स्ट सेकंड, पीआई टेक्स अकाउंट ऑफ एब्सोल्यूट साइज ऑफ द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, बिल्कुल नहीं, ये एब्सोल्यूट साइज बिल्कुल नहीं देता है। पीआई हाईलाइट्स द प्रोजेक्ट विच आर स्लोएस्ट इन जनरेटिंग रिटर्न, ये ऐसा कुछ हाईलाइट नहीं करता, ये भी गलत है, ये इसका वीकनेस है। इनफैक्ट पीआई कैन ओनली बी यूज इफ प्रोजेक्ट आर डिविजिबल, मैंने कितना बार बोला कि जब डिविजिबल होता है प्रोजेक्ट उस केस में हम लोग पीआई को यूज करते हैं। जब इंडिविजुअल है तब ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं किसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। पीआई अलाउज फॉर अनसर्टिनिटी अबाउट द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट, बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करता, ये सब इसका वीकनेस है, बाकी सी को छोड़ के बाकी सब इसका वीकनेस है। ठीक है, ओके, so I need to go somewhere right now, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। So what is the ESC of super machine to the nearest whole number? ठीक है, तो ESC कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू वी फर्स्ट नीड है एनपीवी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, सेवरल इयर्स लेटर देयर इज नो कैपिटल रशनिंग एंड बिल्डर कंपनी डिसाइड टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन।
चिल्ड्रन कंपनी है द चॉइस ऑफ आइदर सुपर मशीन और ग्रेट मशीन, जो 3 इयर्स के लिए लास्ट होगा, और सुपर मशीन 4 इयर्स के लिए। हम लोग को डिटेल दिया हुआ है, कैश इनफ्लो द फॉलोइंग प्रेजेंट वैल्यू टेबल इंक्लूड फिगर फॉर सुपर मशीन के लिए दिया हुआ है। और उसके बाद बोलता है टैक्स एंड टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन शुड बी इग्नोर। ओके, तो ये से कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट एनपीवी कैलकुलेट करते हैं ना। पीवी तो दिया हुआ है, तो एनपीवी सबको ऐड करना है, -250 250 123, प्रेजेंट वैल्यू जितना भी दिया है सबको ऐड कर दो। 4 इयर्स के लिए दिया, 4 इयर्स के लिए ऐड करेंगे 7840 प्लस 23113 प्लस 22784 प्लस 6360, ये हमारा एनपीवी। और एन्युटी फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 इयर्स के लिए कितने परसेंट पे, 12% पे। एनपीवी कितना हो जाएगा, 3.037। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा ईएससी आ जाएगा, जो कि ये 105। नियरेस्ट होल नंबर, इसको राउंड अप कर दो तो हो जाएगा। हाँ, ये हमारा हो जाएगा ईएसी, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, ठीक है ना, इजी है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कैसे क्या करना है ना। Okay, so which of the following statements concerning builder company use the ESC as true? ESC हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर मान लो आप एनपीवी कैलकुलेट करते हो, जैसे यहाँ पे रिप्लेसमेंट ईयर 3 या 4 है, उसका आप एनपीवी कैलकुलेट करते हो, तो ऑब्वियसली जिसका हाईएस्ट एनपीवी होगा वही आप चूज करोगे। और आपका जैसे जैसे लाइक ईयर बढ़ेगा तो आपका एनपीवी आई थिंक घटेगा ही, तो उसके अकॉर्डिंग आप रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हो, क्योंकि एनपीपी आपका लेंथ ऑफ टाइम इग्नोर करता है ना। तो उस चीज के लिए हम लोग ईएससी यूज करते हैं, ताकि जो भी एनपीपी है उसको हम लोग स्प्रेड आउट कर देते हैं, जितने ईयर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं रिप्लेसमेंट साइकिल उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कर रहा है, यूज ऑफ इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इज एप्रोप्रिएट इन अ पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन को बिल्कुल नहीं कवर करता है, अगर इन्फ्लेशन हुआ तो कॉस्ट भी बढ़ेगा ना इसका, है कि नहीं, जो इनिशियली जो भी हम लोग कॉस्ट खर्चे हो रहे हैं सब बढ़ेंगे, तो ये तो गलत है, ये इसका वीकनेस इन फैक्ट। ESC method assume that machine can be replaced by exactly the same machine in perpetuity. Obviously ये हम एजुकेशन में पढ़े हुए थे ESC के, कि अगर हम लोग मशीन को रिप्लेस करते हैं तो मशीन शुड बी सेम। ठीक है, उसका ऑपरेटिंग इफिशिएंसी भी सेम होगा। ठीक है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, और असेट को हम लोग रिप्लेस करेंगे पर मतलब इन पॉसिबल फ्यूचर में विद सेम टाइप ऑफ असेट। ठीक है, ये भी एजुकेशन में पढ़ा था। और टैक्स और इन्फ्लेशन को इग्नोर करेंगे, आप बुक में देखना, आपको बुक में बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा। तो ये उसका एक एजम्पशन है जो स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है, वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। ओके, ओके, सो आपका what is the expected present value of maintenance cost for the year 2 to the nearest whole number? ठीक है, ईयर 2 आप देखोगे तो 2 दिया हुआ है, कैश फ्लो भी 2 दिया हुआ है, एंड प्रोबेबिलिटी 2 असाइन किया हुआ है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, दोनों ईयर के कैश फ्लो का पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और उसको फिर डिस्काउंटिंग लगा दो, आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। एक बार आप ट्राई करो। ठीक है, तो मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी मैंने करवाया, तो अगर नहीं कुछ समझ में आया तो प्लीज मुझे आप मैसेज करना, मैं आपको हेल्प करूंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय।